نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا۔ صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الأضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر سے بڑا پیارا ہو، وہ بڑا خوبصورت ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے سکون سے آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا۔ دوسرا انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری۔ اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چودراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بڑے بولے بالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے، فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اسے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کرنی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے،
फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MP MNA वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बाजार दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहाँ हम लोग हिकमतों का शिकार हैं, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है, और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूँ, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफिज रख ले। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती ही नहीं। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला क्या के हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूँ मशरिक से, मैं गुरूब करता हूँ माज़अल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूँ, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं रब करीम की आवाज़ कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब न दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मोटे इतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात पे उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते फिर जातियात पर उतर कर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम के दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौन गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मेले पे तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा, वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ हो जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो। कहने लगे पकड़ो दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली बनाई गई और 45 फुट ऊंची। मुख्तलिफ रिवायात अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं कि 3 महीने तक नमरूद ने कहा कि इसके अंदर लकड़ियां डालो। लोग पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है? कहने लगा बंदा तो एक जलाना है, पर बंदा बड़ा तगड़ा है, एक बंदा। 3 महीने लकड़ियां डाली गई। और लोगों की जो तोहमात होती है ना वो बड़ी अजीब होती। तोहमात मैंने बड़ी तफसील से रमजान मुबारक में गुफ्तगू की थी। बदशगुनी तोहमात लोग लेते हैं,
उस वक्त भी लोग तोहमात का शिकार हो गए। अकीदा बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें करने लगता है, तोहमात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मानती, मैं बीमार हूं, अगर सही हो गई तो इतने में लकड़ी दोगी हजरत इब्राहिम की आग जलाने के लिए। एक औरत लेके जा रही है लकड़ियां, एक नेक दिल आदमी ने उससे पूछा कहाँ जा रही हूँ? कहने लगी मैंने मन्नत मानी थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा रही हूँ। तो रब करीम के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी, तुझे वो जगह मिलेगी नहीं। वो बीबी कई महीने ढूंढती रही, जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ियां डालनी, मारी गई। तो हम्मात का शिकार हुए बहुत सारे लोग। भाई तो हम्मात दीन के अंदर मना है। तो हम्मात दीन में कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पे जाके साले सवाब के लिए कोई चीज मानना, ये तो दुरुस्त हुआ। लेकिन गैर शरी नजरें मान लेना कि मैं आके गिर्द चक्कर लगाऊंगा, मैं जनाब वहां जाके ये वाला तमाशा करूंगा, मैं धागा बांधूंगा, मैं रस्सा काटूंगा, मैं वहां गंदे हाथ से पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत इजाजत, ये तो हम बात है, बदशगुनी है। दीन में इनकी कोई गुंजाइश। आप नजर मांगने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगाऊं तो कैसे माननी चाहिए, का तरीका पूछे। ऐसे ही गलत चीज की मन्नत थोड़ी माननी जाएगी। 12 आलाम पर से मतलब हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई गई, 45 फुट ऊंची आग है, परिंदा भी ऊपर से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है जल के। इतने दिल लगा के आग जलाई गई। अब हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा है। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है, किसी जगह ऑफिसर बन गया तो मौज है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा साहब के लिए मौज है, खतीब साहब के लिए मौज है। जलना किसको पड़ता है? वहां ही कोई नहीं रहा। माशाअल्लाह वो लोग गुजर गए जो तकलीफें सह के काम करते थे, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो अब इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो। वो जिस तरह झूलने के लिए झूला बनाया जाता है, इस तरह एक मंजनीक पुराने जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंके जाते थे दुश्मनों पे। वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को फेंकेंगे। हाथ हजरत इब्राहिम के बांध दिए, पाँव मुबारक बांध दिए, पूरी जमीन पे एक नाम लेने वाला खुदा का। और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। जब फेंका जाने लगा ना आग में, तो हूरें रोने लगी, फरिश्ते तड़पने लगे, ऐ अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। फरमाया जाओ जाके उससे कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। हवा का फरिश्ता आया, कहा इब्राहिम अगर तू कहे। ओ भाई इन चीजों को कहानी समझ के ना सुना करें, ये दास्तान नहीं, ये वो तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जो अकीदे, ये वो नजरियात है जो हमें ओढ़ने को कहा गया। अपने रब करीम की रिजा पे राजी रहने के ये वो खूबसूरत मवाक़े हैं, सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है। ये है अहले तरीकत की बातें। वो कहते हैं यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, ऐ अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक दी जाए। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी का फरिश्ता आया, कहा हुजूर इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी। फरमाया तू जा, तुझसे कोई काम नहीं। अब जब मंजनीक में रख दिए गए, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। कहा इब्राहिम कोई हाजत? फरमाया तुझसे कोई नहीं। कहा चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो, मुझे पता है मैं छोटा हूँ, आप मुझसे मदद क्यों लोगे? रब करीम से ही बात कर ले। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे जिब्रील ये बता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में है? उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। बताया तो उससे जाते हैं जिससे खबर ना हो। तो अगर उसे पता है, तो अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। उसे कहो ठीक है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका आग में, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। हजरत इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले हैं, कौंपलें महक रही हैं, कलियां खुशबू दे रही है। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रख दिया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाब सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाब हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे होते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचलाहट होती है, भिन बनाहट होती है।
हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाब हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत, अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर अजीज़ा मक्के के पास, भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए तो कहाँ से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने, कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी, भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बढ़ रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली है, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बढ़ रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो भी खुद जवान है वो भी तो ये तो एक साल मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप थोड़ी शुरुआत है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप है तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहाँ लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूर एक मछली था, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें एक मिश्कीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ पे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था, वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। कहने लगी अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी शाबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है, और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए, बहन और बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए,
क्योंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहू साया, बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, या तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावत के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हज़रत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है, क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक में छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी। और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है, परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ, और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही। हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूँ। कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उसमें क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दे, बात खत्म हुई। यकीन करें मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज है, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं, या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है फलस्तीन में। जब आपका कयाम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी कर लूं? और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कैद के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूँ, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2 3 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हैं हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूँ, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से एक कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी, इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, ला के बोरियां जब रख दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती है जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई हैं तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी।
इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती है जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई। आला ग़िज़ा बनी, बड़े बड़े खाने बीवियों ने मिलके पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे हैं, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाब सारा कहने लगी इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अशकुशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है। भूखे को खाना खिलाना यह भी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मुसलमान? तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाया जाए गरीब ना बुलाया जाए, वो बदतरीन दावत। हजरत इब्राहिम का तरीका रहा सारी जिंदगी मेहमान नवाजी। और दूसरा उनका मिजाज था, अल्लाह से प्यार हो गया था ना, जब रब करीम से मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत का एहसास होता है दिल में, फिर सजदे लंबे होते हैं। आम आदमी तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, जिसे खुदा से मोहब्बत होती है वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ सकता। वो ये मोहब्बत की बात है ना, जिसको प्यार होता है उसकी तहज्जुद भी है, उसकी इशराक भी है, चाश्त भी है, उसके उम्रे भी है, उसके हज भी है, उसके बार बार काबतुल्लाह के दीदार भी है। ये मोहब्बत इलाही है, जोश मारती। इन लोग सजदा करते हैं तो उठते ही नहीं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं अल्लाह की। हजरत इब्राहिम को रब करीम से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू से छलकता था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गाय इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता, वो जानवरों पे बोला जाता। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां गाय ऊंट बैल बड़ा कुछ। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चल रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर भी करता। तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुनाओ। और फिर शुरू हो गया सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में यार फिर जरा सुनो, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सान। जरा दोबारा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर क्या, फिर कहा, और इस तरह कहने लगा बस ही आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुनो। कहने लगा पैसे लगेंगे, तू क्या लेगा? कहने लगा गाय भैंसे सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ तू जिक्र सुनाता रह, मैं देता हूँ। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो खामोश हो गया।
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना। तू इस तरह कर, मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रोए पड़ा और कहने लगा इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूँ हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी जरूरियात से ज्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फर्ज होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहां वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो। उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर ले, खूबसूरत जानवर ले। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने, उन्हें पता था कि जो मुस्तफा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप? तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कज़नों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, तो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारी गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। और खुदा के बंदे अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में एक देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल आल्ला से बचे, खूबसूरत जानवर लाए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। उनके लिए नसीहत है जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हज़रत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते, तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँ, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाए। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें। नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे, खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को,
कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई। जरा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रिजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है, और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाजत तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाजत है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं, और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई। भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है? उन रिश्तेदारों को देखे जिनका आपको पता है गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसमें सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। हजरत शीमा थी ना नबी पाक की रजाई शीरा, हजरत हलीमा की, सारा कबीला गिरफ्तार होके आया था। वो जब आई है ना नबी पाक के पास, तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी हुजूर को जाके बस कान में कह दो कि हलीमा की बेटी आई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर इतनी तेजी से उठे कि नबी पाक की चादर भी मिंबर पे रह गई। फिर हुजूर घर ले गए, फरमाया फातिमा और आयशा को बुलाओ, मेरी बहन आई है। मेरे महबूब करीम ने फरमाया तू अगर कहेगी ना तो मैं तेरे लिए मदीने में मकान बना दूंगा, तू यही रह जा। कहने लगी मेरी महबूबा वापस जाना। तो हुजूर से कहने लगी मेरा सारा कबीला गिरफ्तार है, इसी छोड़ दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हर काम हुजूर ने मशवरे से किया, पर जब बहन ने कहा ना छोड़ दे, और मैं कोई मशवरा नहीं, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगी वैसे ही हो जाएगा, जिस तरह तू चाहेगी। कौन अशोई करेगा, कौन बात सुनेगा, कौन दुख किसी की। पगली बीबी, पागल औरत, देखे कभी पागलों को कोई वक्त देता? वो पागलों के पास बैठा, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मुझे तो सियाना बंदा मिलने आए थे, मैं कहता मुख्तसर बात करना। एक पगली बीबी आई, पागल, हजरत अनस कहते हैं आके खड़ी कर, या रसूलल्लाह मुझे काम है। पागल औरत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा क्या काम है? तो उसके मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर छोड़ेंगे तो दीवानी है, ऐसी बातें करती रहती। नबी अनस बिन मालिक फरमाते हुजूर नाराज हुए, और मैं तुमसे बात कर रही है कि मुझसे करने तो बातें, क्या बात है बता? कहने लगे हुजूर यहाँ नहीं करनी, मेरे साथ आए। नबी करीम उसके पीछे पीछे चलने लगे। जनाब अनस फरमाते कि सहरा में ले गई, नबी पाक रेत पे बैठ गए, सामने बैठ गई। कहने लगी हुजूर बच्चों को मना करे, मुझे रोड़े मार। फरमाया मैं कह दूंगा, आप नहीं करे। हुजूर मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। फरमाया मैं समझाऊंगा। या रसूलल्लाह ये पागल कह के छेड़ते। हुजूर ने फरमाया कोई नहीं कहेगा, मैं मना कर दूंगा। हजरत अनस कहते हैं देर तक हुजूर को रेत पे हुजूर बैठे। यार ये भी सुन्नत है मेरे नबी, सिर्फ खाने के दरमियान मीठा खाना ही सुन्नत नहीं मेरे भाई, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, ये भी रसूल पाक का तरीका है। नबी करीम ने देर तक वक्त दिया, देर तक, कभी हंसती कभी रो देती। हजरत अनस कहते हैं मैंने ये अंदाज भी देखा, जब वो हंसती तो हुजूर भी हंसते। कभी को पागल के गम सुन के भी रोया, लेकिन ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। मेरे महबूब ने खोल के बातें सुनी, खोल के अपनी मर्जी से कहने लगी महबूबा मैं थक गई हूँ, अब आप जाएं। हुजूर मैं थक गई हूँ, आप जाएं। नबी करीम उठे और उठ के फरमाया किसी का ख्याल न करना, जब तेरा दिल करे दोबारा आ जा। यार ये हुस्न है, ये वकार है कि तू अशोई किस तरफ। मैं ना अभी इंतजार कर रहा हूँ, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि MNA आएगा तो उस गरीब की मदद करेगा। मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि MP आएगा तो उसकी मदद करेगा। मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा सेठ आएगा तो मदद करेगा। जब मोहल्ले का और गांव का चौधरी किसी गरीब पे जुल्म कर रहा होता है तो मैं अपने बच्चे को कह रहा होता तू ना उस लड़ाई में जाना, हमें क्या लगे, तो कौन फिर उसका हाथ जुल्म पे खत्म कैसे है? फिर क्या तरीका है जुल्म खत्म करने? जब कोई जालिम को जालिम कहने कोई तैयार ना हो। वो जमाना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो सारा मक्का मुखालिफ हो गया, सारा मारा। एक वक्त उरूज का होता है, एक वक्त ऐसा होता है जब गुर्बत होती है, इब्तिदा होती है। इस्लाम पर गुर्बत का जमाना। कबीला बनु आराश का एक शख्स मक्के आया, वो कहता मैं छोटा सा ताजर था। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हज़रात? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बस एक तो बात और अर्ज कर दिया आप हज़रात। हजरत तारक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी है, फरमाते वो बनु आराश का रहने वाला शख्स आया। वो कहता मैं छोटा सा ताजर था, व्यापारी था। मैं गाँव से जानवर ऊंट घोड़े खरीदा करता, मक्के में ला के बेचता, मदीने में ले जाके बेचता, ताइफ में। मैं
एक दफा ना बड़े सुर्ख रंग के खूबसूरत 2 ऊंट मक्के लाया। मैं मक्के के लोगों को ज्यादा नहीं जानता था, मंडी में जो लोग आते जाते थे उन्हें जानता था, माल बेच के चला जाता था। आज मैं मक्के में दाखिल हुआ तो अबू जाल मुझे कहने लगा, यहाँ एक शख्स ने दावा नबूवत किया, उसके करीब न जाना। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाऊंगा। मैंने ऊंट दिखाए तो अबू जाल को पसंद आ गए, सौदा हो गया, ऊंट खरीद लिए। वो शख्स कहता है कि ऊंट खरीद के ना तो कहने लगा फलां मोहल्ले की फलां गली के फलां कोने में मेरा घर है, कल आके पैसे ले जाने। कहते मैं अगले दिन पैसे लेने गया तो कहने लगा आज नहीं मेरे पास, कल आना। मैं अगले दिन फिर गया, पैसे, कहने लगा नहीं कल आ। होटल होते नहीं थे, मक्के में मेरा रिश्तेदार कोई नहीं था, मैं फुटपाथ पे सोता। जो चंद खजूरें और सिरका मेरे पास था वो पहले दिन ही खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट भी सारी वहीं लगी हुई थी, घर में बच्चे बच्चियां इंतजार कर रहे थे। मैं बड़ा मजबूर हुआ, थक गया। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा पैसे, कहने लगा कल आना। मैंने जरा दबा के बात की, मैंने कहा यार मेरी कोई पुप्पो तो रहती नहीं मक्का मुकरमा, गरीब आदमी हूँ, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। जब दबा के बात की तो कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं लेने भाग जा। जी ताजिर जब डूबते हैं ना तो माज़ अल्लाह ताला कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुदकुशी करके मर जाते हैं, इसलिए कि बड़े लोग इनके साथ वाबस्ता हो। जब किसी की असल राह से डूब जाए कहते मैं कांपने लगा। मैंने पूछा लोगों से कि तुम्हारे चौधरी सरदार बड़े कहाँ बैठते हैं, तो कहा वो जो हरम मक्का के साथ टोलियां बना के बैठी है ना, वो सारे हमारे सरदार ही है। कहते मैं वहां गया, अबू सुफियान थे, अबू लहब था, उतबा, तैबा, शैबा, अबू मुख्तरी, अखनस बिन शुरैक सब बैठे। मैंने जाके कहा यारो मैं बनु अराश का रहने वाला हूँ, छोटा सा ताजर हूँ, 2 ऊंट यहाँ लाके बेच बैठा हूँ, तो एक शख्स ने खरीदे, वो पैसे नहीं देता। कहते उतबा बोला या अबू सुफियान बोला, कल कौन है जो तेरे पैसे खा गया, ताकत है किसी की नाम ले। कहते मैंने कहा उसका नाम अबू जहल है। जब मैंने ये कहा ना वो कहने लगे ओहो वो तो पैसे नहीं मिलते थे, तो बड़ा गुंडा है, तो बहुत बड़े बदमाश के पास हो, वो तो नहीं पैसे मिलने ने, कभी नहीं मिलते। फरमाते अब मैं कांपा, अब तो मेरी उम्मीदें टूटने ले, अब मेरे आंसू छलकने लगे। तो एक शख्स ने मजाक किया, इधर देखिएगा मेरी तरफ, मजाक किया। कहते सामने ना खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमा, नबी करीम बैठे हुए, नबी करीम। तो एक बंदे ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशन, उसने ना मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है वो तेरा मसला हल कर सकता है। कहते उसने मजाक किया, बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि बेचते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा में हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा। नबी करीम कुछ वजीफा पढ़ रहे थे। ये गरीब आदमी ना बेचारा वजीर से भी डरता है तो पीर से भी डरता है, कहीं तबीयत में कुछ चीज गिरा ना गुजर जाए। तो कहते मैं डरते डरते ना पीछे बैठ गया कि फारिग होंगे तो मैं बात करूंगा। फरमाते मैं अभी पीछे बैठा ही था, पूरा बैठा भी नहीं था कि मेरे रसूल पाक ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, रुख मेरी तरफ फेरा। 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मां मिल गई। 2 जुमले, पहला फिक्रा हुजूर ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फिक्रा फरमाया परेशान लगते हो। फरमाते हैं छम छम मेरे आंसू गिरे, छम छम। और भाई कोई अपना मिले तो रोने का मजा आता है, कोई दुख पूछे तो फिर बता आंसू गिराए ना, हर एक को तो दुख सुनाए भी नहीं जाते। वो शायर उर्दू का है, आपकी समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा था कि हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अब रोए भी हैं पर हमने कोशिश की है कि कोई हमारे आंसू न देखे, छुप छुपा के रोए। फरमाने लगे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परदेसी और परेशान लगते हो। कहते मैं जब रोया ना तो करीम रसूल ने काम भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा मसला क्या, मुझे तबकी दी। फरमाया चुप कर, रोता क्यों है, जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, फरमाने लगे गम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के, जाओ ऐलान कर दो गम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नबी करीम ने फरमाया फिक्र न कर, जैसे तू कहेगा हो जाए। कहते हुजूर पहले मुझे घर लाए, सिरका खिलाया, खजूरें दी, दूध पिलाया, मैं 2-3 दिनों का भूखा था, मैंने राज राज के खाया। कहते जब मैं सैर हो गया ना मेरी तसल्ली हो गई। अब हुजूर ने फरमाया बता तेरा मसला क्या है। सारा इलाका किसी और तरफ है, शहर किसी और तरफ है, पर मेरे नबी आपके साथ है। हालात नहीं है इस वक्त कि आपके साथ खड़ा हुआ जाए, पर हुजूर आपके साथ है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम रसूल फरमाने लगे क्या मसला है। अबू जाल पैसे नहीं देता। फरमाया उसने क्यों नहीं देने, देगा पैसे, क्यों नहीं देने पैसे। देख कुछ लोग शराफत को बुज़दिली समझते। वो एक दरवेश था तो किसी ने सख्त बात कर दी तो कहने लगा मेरे साथ सख्त बात ना कर, एक सेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जाने, एक सेट ते पखड़ा कुआर गंदल ते असी। और उसका तर्जुमा इकबाल ने भी किया। इकबाल कहने लगे वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, पर रिज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रिज़्मे हक व बातिल हो तो
अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिर पे सख्त और आपस में रहम दिल, ये उसूल है मोमिन का। नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं पैसे देने देगा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ चले आहिस्ता आहिस्ता, और भाई काउंसलर रोका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी। वैसे तो काउंसलर के दरवाजे पे सवेरे को चला जाए ना गरीब आदमी, अमीर आदमी पे तो खैर पर्चा भी हो तो ऐसे सब पूछते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई बता की करता है, तो गरीब आदमी को ले जाते हैं, तो वो फिर जाता है बेचारा काउंसलर साहब के पास, चौधरी साहब के पास, तो फिर अंदर से पैगाम आता है कि चौधरी साहब टूथपेस्ट कर लें, फिर पैगाम आता है कि ब्रेड गर्म हो रहा है, फिर पता चलता है कि अखबार पढ़ रहे हैं। वो गरीब बाहर बैठा है, फिर बाहर आके पूछते हैं गाड़ी करा के लाए हो, वहां कैसे जाना है, वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई, बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते तख्त बिठावे, वो सजना किसे तो कारा मिलता ही, कोई काबे हो खाली आम यार उसकी बेनियाजी। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे जितनी तफासील कुर्बानी के बारे में, राह खुदा में देने के बारे में हो सकती थी, वो सारी इस आयत ने बंद कर दी, बात ख़त्म कर दी। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। रज़ाए इलाही में क्या देना है, क्या रखना है, बात को समेट के रख दिया। फरमाया जीना भी अल्लाह के लिए है, मरना भी अल्लाह के लिए। कुर्बानी का मफहूम सिर्फ इतना ना समझे, इसका फलसफा समझे। कुर्बानी का मफहूम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक जानवर खरीद लिया तो आपने उसको ज़िबा कर दिया। कुर्बानी का मफहूम ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी, उस ज़ात की बुलंदी को देखें, उसके मकाम को देखें, उसके मर्तबे को देखें, फिर उसकी अताओं को देखें, फिर हमारे बिन मांगे उसने हमें क्या कुछ दिया, उसके नवाजने को देखें। मेरा जो दोस्त मुझे ज़्यादा प्यारा होता है, उसके घर में मैं सादे शापर में सूट नहीं लेके जाता, मैं उसको मंगाता हूँ, गिफ्ट पैक में बंद करता हूँ, साथ एक मिठाई का डब्बा रखता हूँ, उसको अच्छे अंदाज में ले करके जाता हूँ क्योंकि मुझे प्यारा है और उसकी अदब अदाब का ख्याल करता हूँ। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि कुर्बानी का मफहूम जानवर को ज़िबा कर देना नहीं, कुर्बानी का मफहूम तो रब की रज़ा को पाने का नाम है, अल्लाह की रज़ा को पाना है। वो कितना आला है, तो जब उसकी बारगाह में तोहफा भेजना है तो फिर आपने जानवर को पेश नज़र नहीं रखना, फिर तो आपने उस मालिक को पेश नज़र रखना है कि जिसके शायान शान हम कुछ पेश करने की सलाहियत और काबिलियत नहीं रखते। तो अल्लाह की ज़ात के शायान शान देखें ना, कुरान मजीद ने एक सोच हमारे जहनों में पैदा की। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें भलाई मिले और तुम दर्जा अबरार में दाखिल हो जाओ, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, वो अबरार जिन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, तुम बिर तक पहुंच जाओ, तो फिर फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ राह खुदा में खर्च ना करो। मिम्मा तुहिब्बून यानी वो शय जिससे तुम्हें पहले प्यार हो जाए, जिससे पहले तुम्हें मोहब्बत हो जाए, जो तुम्हारी प्यारी हो, वो तुम राह खुदा में। आप इस मफहूम को अच्छे तरीके से ज़हन में, हम लोग क्या करते हैं, एक जानवर लेना है, बस ठीक है जी मुनासिब मिल गया था, ज़िबा कर दिया। आप उस कैफियत को तो समझें कि ये तोहफा किसी मामूली आदमी को नहीं देना, ये रब करीम की बारगाह में पेश करना। आप नाराज़ ना हो तो हम तो माज़अल्लाह कुर्बानी के मौके पर भी जुए का इंतज़ार करते हैं। आखिरी दिन देखूंगा जुआ चढ़ गया, दब गया। अगर तो जानवर बड़ा नीचे गिर गया तो मौज बन गई। मसलन क्या हो जाएगा, 20,000 सस्ता हो जाएगा क्या? तो आपका ये नफा नहीं कि अल्लाह की रजा के लिए 20,000 और ज्यादा लग जाए अल्लाह के रास्ते में। वो जो स्टेटस था ना रब की रजा के लिए देने का, अपनी प्यारी चीज मिम्मा तुहिब्बून, और इसके तहत हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद सिर्फ माल देना नहीं कि कोई बंदा समझे सिर्फ माल दूंगा तो नेकी तक पहुंच जाऊंगा। वो कहते हैं अगर तुझे बरादरी प्यारी है तो बरादरी कुर्बान कर मुस्तफ़ा के नाम पर, अगर तुझे ओहदा प्यारा है तो अपना ओहदा कुर्बान कर नबी पाक के नाम पर, अगर तुझे इलाका प्यारा है तो हिजरत कर रसूलुल्लाह के नाम पर, और अगर तुझे अपनी जात प्यारी है, अगर तुझे अपना आप प्यारा है तो जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ न भेसा,
راہ تیرے وچ رول کے مرساں تے قدم نہ پچھا ہٹے ساں سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش. ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا تو بڑا کمزور ہے, اس میں لطف نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں. شکر کھانا انہیں پسند تھا, کس میں ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن. حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں حضور آپ پیسے دے دیں, کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا. تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو, تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں. جو چیز آپ کی محبوب ہے, جو آپ کو جان سے عزیز ہے, جس سے آپ کو دلچسپی ہے, وہ جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے ہیں کہ آپ نے تحفہ سجا کے, سوار کے, نکھار کے, خوشبو لگا کے, اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے, پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے, اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ, تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا, وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا. اب تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے, وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا, اور نفع ہی نفع, نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں. تو قربانی کا ماحول سمجھے, مزاج سمجھے, پیاری چیز وہ 10 دن آپ کے پاس رہے, اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے, کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں, کبھی گھاس ڈالنے جائیں, کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں. یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کریں. کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ, کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا حضور نے. اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو, کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے, 2 دیتے تھے. اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, 7. لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ذرا 7 سے ضرب دیکھے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں. ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں, عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں. موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی, اس کے لیے پیسے تھے, لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا. حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ, لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا, پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے. صحن میں نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا. حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی, لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو, میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھ کر مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے, با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو, مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے, لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو, اس کے محبوب سے پیار ہو, تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی, پیار بھی بڑا ہو گیا, وہ بڑی بھی ہو گئی, خوبصورت بھی بڑی تھی, اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے, کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں, پانی پلایا کہ نہیں, تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہیں کرو, اور مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے, پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی, ماڑا بندہ, گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ میری قبول کر لیں. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے, وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے. کیا کرتے ہو صاحب, یہ تو اصل ہے, باقی تو ساری فروعات ہیں, باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے.
دیتے وقت گنیں گے, شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے, تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے, فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے, گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمایا. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا, عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا, چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا, یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے, حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے, یا رسول اللہ قبول کر لیں, تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں, تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے, حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے, پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے, ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے, اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی, دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا, کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا, مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے, فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم, قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے. تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا, جانور کو قربان کرنے کا, احسار کرنے کا, قربانی دینے, اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں. لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی. اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی, پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ, اللہ کے راستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ. اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو. اگر یہاں بھی ذوق, یعنی کھجور بھی پوری نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا. ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں, بڑے حالات خراب ہے, ماڑے بڑے ہیں, پوری نہیں پڑتی, اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے. دیکھو یاد رکھو, اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے, ایک ٹکڑا کھجور کا. اب سمجھ لیں بات کو. ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا, وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے. اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں, مسجد کو, مدرسے کو, گلی بنانے والوں کو, قبرستان بنانے والوں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو. سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے, تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں, جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں. اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی, ہمیں 5,000 نہیں دیا. بھائی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے. تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے, جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی, بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے, تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے. کہ میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی, ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے, اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے. لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا, تعلیم یافتہ ہو گیا, تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے. لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں, ماحول کو ذوق کا رنگ دیں. ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے. بالکل جائز ہے. سارا گوشت کیا, پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں, شریعت آپ کو منع نہیں کرتی. لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں, پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں, مکینک لوگ, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا. لوگ فریجر ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے, پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے, آخری سمجھ کے کھانا ہے. ایسا نہ کرو. اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے, قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی. ایک لقمہ بھی نہ کھائیں, ساری بانٹ دیں. آپ بانٹتے رہیں, رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا.
تو اپنے ہاں یہ ذوق اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما. مدرسے میں نہیں لے کے گئی، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئی، کالج میں نہیں لے کے گئی، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کہا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ اوت کر کے نکلتا ہے. تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تو ہبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا. چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا. چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا. حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا، عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح ہل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا. پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں، میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے. دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے. اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے. لاڈلے تھے. کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب کلمہ تو پڑھائیں. پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے. پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا. او جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو کہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد ہو جا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں. غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے. وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں. اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی. مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا. ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو. وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی.
लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है, और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता है। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी। तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या? मुसअब इब्न उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था, सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दें आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई। वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहां उनकी लाश मुबारक पर खड़े होकर मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम में पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, कि ना जिसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। पर मैं इस तरह करो जरा, सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिलेगा, अल्लाह राजी होके इनसे मिलेगा। तो अपनी जो प्यारी चीज़ है ना ये छोड़ दें। जिंदगी में सारा कुछ संभाल संभाल के रखना। जो आप चीज़ें संभाल के रखते हैं उनको तो जंग लग जाता है, जो चीज़ें संभाल के रखते हो तो बासी हो जाती हैं। अल्लाह के रास्ते में 2 कुएं से पानी निकल जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर कोई पानी निकले ना तो जो खड़ा होता है उसमें जंग आ जाता है, वो बासी हो जाता है। इसलिए खूबसूरत जानवर लें जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, और अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करें जो चंद दिन रह गए। फिर खूबसूरत अंदाज में, हमारे कसाइयों को बड़ी जल्दी होती है, जानवर में अभी जान मौजूद होती है तो वो खलड़ी उतारनी भी शुरू कर देते हैं, उसको सलीके से ज़िबा करें। और ये ख़त्म वाली चीज़ बड़ी बरकत वाली होती है, तो ये तो अल्लाह के नाम पे है, तो इसकी एक एक बोटी की हिफाजत करें और अच्छे तरीके से इसको पहुंचाएं। कोई बेकदरी का मुजाहरा, कुछ मालदार जो बड़ी कुर्बानी देते हैं वो कदर नहीं करते, एक एक काश की एक एक टुकड़े की कदर करें, इसलिए कि ये रब के नाम का जानवर है। और कोशिश करें, असल में ना अमीरों के यार भी अमीर होते हैं, सही कह रहा हूँ। तो पूछते हैं तूने कुर्बानी किया जी, तूने किया, तो कहते हैं जी इस दफ़ा सब ने की है। तो थोड़ा सा ना अपने यारों से निकल के, अपने करीबियों से निकल के देखें, बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं की, तो वहाँ गोश्त तकसीम करना है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की।